In the yesterday's session, and again the last session, we were discussing the audit of share capital. We discussed the share capital, we discussed the buyback, we discussed the sweat equity shares and calls in arrears and calls in advance. Yes, today we will proceed further. It is the issue of preferences. Normally the issue procedure will remain same. We will have to audit application level, allotment level and first call and final call level. That procedure will remain same. But for preferences, certain new points are there that we are going to discuss here. Let us see. As per section 55 of the Companies Act 2013, no company limited by shares shall issue any preferences which are irredeemable. Underline the word. And now onwards, as per Companies Act 2013, irredeemable preferences cannot be issued. Preferences should be always redeemable. Always redeemable. Be clear. Yeah? Irredeemable, not permissible. Whereas a company limited by shares may, if so authorized by its article, issue preferences which are liable to be redeemed within a period not exceeding 20 years from the date of their issue, subject to such condition as may be prescribed by the rules. Meaning that the maximum redemption period, एक चीज क्लियर है, हमने दो पार्ट में डिवाइड कर दिया, redeemable preferences, irredeemable preferences. Irredeemable preferences cannot be issued, it is prohibited, तो उसको कैंसिल कर दो. Redeemable में the life is, the maximum redemption period is 20 years. Maximum life permissible is 20 years. 20 years से ज्यादा पीरियड के लिए आप प्रेफरेंस इश्यू नहीं कर सकते. समझ लो, टेक एन एग्जांपल, हमने प्रेफरेंस इश्यू किया 15 साल के लिए, तो इट इज अलाउड. 10 साल के लिए इट इज अलाउड. 22 years के लिए इट इज नॉट अलाउड. बी क्लियर. या उसके रूल्स ये है, अ कंपनी हैविंग अ शेयर कैपिटल मे, इफ सो ऑथराइज्ड बाय इट्स आर्टिकल, issue preferences subject to the following condition. Issue of such shares has been authorized by passing a special resolution in general meeting. Yeah, the company at the time of issue of preferences has no subsisting default in the redemption of preferences issued earlier, either before or after the commencement of this act, or in payment of dividend due on the preferences. Meaning that preferences issue करने के लिए condition है, number 1, आपको एग्जामिन करना क्या एज एन ऑडिटर, इट मस्ट बी ऑथराइज्ड बाय द आर्टिकल्स. नंबर 2, मस्ट बी ऑथराइज्ड बाय द स्पेशल रेजोल्यूशन इन जनरल मीटिंग. नंबर 3, कोई अर्लियर डिफॉल्ट नहीं होना चाहिए. प्रेफरेंसेस अगर हमने पास में इश्यू किया था तो उस पर कोई उसके रिडम्पशन या तो डिविडेंड पेमेंट में कोई डिफॉल्ट नहीं होना चाहिए. नंबर 2, द कंपनी इश्यूइंग प्रेफरेंसेस शैल सेट आउट इन द रेजोल्यूशन पर्टिकुलर्स इन रिस्पेक्ट ऑफ द फॉलोइंग मैटर्स रिलेटिंग टू सच शेयर्स. आप जो शेयरहोल्डर्स की मीटिंग में, इक्विटी शेयरहोल्डर्स की मीटिंग में जो स्पेशल रेजोल्यूशन आप पास करोगे कि कंपनी को प्रेफरेंस से इश्यू करना है, समझ लो, तो स्पेशल रेजोल्यूशन में ये सभी चीज आपको मेंशन करनी है. क्या? द प्रायोरिटी विथ रिस्पेक्ट टू पेमेंट ऑफ डिविडेंड और रीपेमेंट ऑफ कैपिटल विज अविज इक्विटी शेयर्स. आपको भली बात ही पता है, प्रेफरेंस उसका नाम इसीलिए है, उसको दो जगह पे प्रायोरिटी मिलती है, एट द टाइम ऑफ डिविडेंड यानी कि प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन, and at the time of capital distribution, capital redemption at the time of liquidation. Yeah, the participation in surplus fund, अगर वो समझ लो प्रेफरेंस डिविडेंड दे दिया, आपको भली बात ही पता होना चाहिए प्रेफरेंस डिविडेंड का रेट इट इज फिक्स. समझ लो 12% वाला प्रेफरेंस है 12%, तो हमने 12% उसको डिविडेंड दे दिया करंट ईयर के प्रॉफिट में से. बाद में इक्विटी को डिविडेंड दे दिया, बाद में जो और सरप्लस फंड बचा उसमें प्रेफरेंस पार्टिसिपेट कर सकते हैं. सरप्लस प्रॉफिट बचा तो पार्टिसिपेट कर सकते हैं, यस और नो, दैट शुड आल्सो बी क्लैरिफाइड. पार्टिसिपेशन इन सरप्लस एसेट्स एंड प्रॉफिट्स ऑन वाइंडिंग अप व्हिच मे रिमेन आफ्टर द एंटायर कैपिटल हैज बीन रिपेड. लाइक कैपिटल, जब कंपनी बंद हो रही है पहले प्रेफरेंस कैपिटल रिडीम होगी, बाद में इक्विटी रिडीम होगी, अगर बाद में भी फंड बचा तो वेदर प्रेफरेंस कैन पार्टिसिपेट, वो भी आपको क्लैरिफाई करना पड़ेगा. स्पेशल रेजोल्यूशन दैट इज कॉल्ड पार्टिसिपेटिव प्रेफरेंसेस. यस, the payment of dividend on cumulative or non cumulative basis. yes, आपको पता है प्रेफरेंस की दो कैटेगरी है, क्यूमुलेटिव, नॉन क्यूमुलेटिव. व्हाट इज क्यूमुलेटिव, नॉन क्यूमुलेटिव? अगर करंट ईयर में प्रेफरेंस डिविडेंड सफिशिएंट प्रॉफिट नहीं है, डिविडेंड पे नहीं किया, तो
क्यूमुलेटिव के केस में इट वुड बी क्यूमुलेटेड, एंड नेक्स्ट ईयर में जब प्रॉफिट होगा तो नेक्स्ट ईयर हम दोनों साल का पे करेंगे, दैट इज कॉल्ड क्यूमुलेटिव प्रेफरेंसेस। एंड नॉन क्यूमुलेटिव प्रेफरेंसेस मींस करंट ईयर में प्रॉफिट नहीं हुआ, डिविडेंड नहीं दिया तो करंट ईयर गया, नेक्स्ट ईयर में प्रॉफिट होता है तो नेक्स्ट ईयर का ही पे करेंगे, करंट ईयर का पे करेंगे, इट विल लैप्स। या बी क्लियर, दैट इज क्यूमुलेटिव नॉन क्यूमुलेटिव। फिफ्थ, द कन्वर्जन ऑफ प्रेफरेंसेस इनटू इक्विटी, द वोटिंग राइट, द रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंसेस, यानी कि स्पेशल रिजोल्यूशन में सब कुछ क्लेरिफाइड होना चाहिए। एक तो आर्टिकल ऑथोराइज होना चाहिए, आर्टिकल ऑथोराइज करना चाहिए, आर्टिकल मस्ट ऑथोराइज द इश्यू ऑफ प्रेफरेंसेस। नंबर 2, क्या शेयरहोल्डर इक्विटी शेयरहोल्डर्स की मीटिंग बुलाओ, उसमें स्पेशल रिजोल्यूशन पास करो और उसमें उतनी चीज क्लेरिफाई करो। नंबर 3, द explanatory statement to be annexed. Explanatory statement to be annexed means, explanatory statement मैंने आपको एक लेक्चर में पढ़ा दिया कि जब भी शेयरहोल्डर्स की मीटिंग में आपको रिजोल्यूशन पास करना है तो शेयरहोल्डर्स को उसकी पहले सभी डिटेल आपको भेजना है, क्या सभी डिटेल्स उसको भेजना है एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट में, दैट इज कॉल्ड एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट। तो आपको एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट जब ये स्पेशल रिजोल्यूशन के लिए आप इक्विटी शेयरहोल्डर्स की जनरल मीटिंग बुलाओगे तब वो नोटिस के साथ आपको ये भेजना है। क्या इसमें क्या क्या चीज क्लैरिफाई होनी चाहिए? देखो, द साइज ऑफ इश्यू, नंबर ऑफ प्रेफरेंसेस टू बी इश्यू, कितना शेयर इश्यू करेंगे, व्हाट वुड बी द नॉमिनल वैल्यू, व्हाट वुड बी द इश्यू प्राइस, द नेचर ऑफ सच शेयर्स, क्यूमुलेटिव नॉन क्यूमुलेटिव, पार्टिसिपेटिंग नॉन पार्टिसिपेटिंग, कन्वर्टिबल नॉन कन्वर्टिबल। आपको पता होना चाहिए प्रेफरेंस शेयर इतने टाइप्स के हैं, क्यूमुलेटिव नॉन क्यूमुलेटिव, अभी मैंने बढ़ा दिया। अगर प्रॉफिट होता है समझ लो, करंट ईयर में प्रॉफिट नहीं होता तो नेक्स्ट ईयर में दोनों साल का आपको डिविडेंड देना पड़ेगा जब प्रॉफिट होगा तब, दैट इज कॉल्ड क्यूमुलेटिव। एंड नॉन क्यूमुलेटिव में करंट ईयर में अगर प्रॉफिट नहीं होता तो करंट ईयर का डिविडेंड विल लैप्स, नेक्स्ट ईयर में ओनली नेक्स्ट ईयर का ही देना है। पार्टिसिपेटिंग नॉन पार्टिसिपेटिंग मींस अगर प्रेफरेंस डिविडेंड पे कर दिया करंट ईयर के प्रॉफिट में से, इक्विटी डिविडेंड पे कर दिया, बाद में सरप्लस प्रॉफिट बचा तो पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर कैन पार्टिसिपेट। सरप्लस प्रॉफिट में से इक्विटी का भी भाग है, प्रेफरेंस का भी भाग है, दैट इज कॉल्ड पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंसेस। एंड नॉन पार्टिसिपेटिंग में प्रेफरेंस पे कर दिया, डिविडेंड पे कर दी, इक्विटी पे कर दिया, बाद में अगर प्रॉफिट बचता है तो ओनली इक्विटी का ही रहेगा, इट इज प्रेफरेंस कैन नॉट पार्टिसिपेट, दैट इज कॉल्ड नॉन पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंसेस। एंड लाइकवाइज जब कंपनी लिक्विडेट हो गई तभी भी सेम, प्रेफरेंस को पहले पे कर दो, रिपे कर दो, इक्विटी को रिपे कर दो, बैलेंस बचा उसमें पार्टिसिपेटिंग कैन पार्टिसिपेट, नॉन पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर कैन नॉट पार्टिसिपेट। बिग क्लियर, बिग क्लियर। कन्वर्टिबल नॉन कन्वर्टिबल आपको भली बात ही पता है। ऑन फ्यूचर डेट आज हम प्रेफरेंस शेयर इश्यू कर रहे हैं कन्वर्टिबल प्रेफरेंसेस, तो फ्यूचर डेट इट वुड बी कन्वर्टेड इनटू इक्विटी। एंड नॉन कन्वर्टिबल में आज हम प्रेफरेंस शेयर इश्यू कर रहे हैं, इन फ्यूचर डेट इट वुड नॉट बी कन्वर्टेड इनटू इक्विटी। या बिग क्लियर। तो ये टाइप्स ऑफ प्रेफरेंस शेयर है, द ऑब्जेक्टिव ऑफ द इश्यू, किसके लिए हम इश्यू कर रहे हैं, मैनर ऑफ इश्यू, द प्राइस, इश्यू प्राइस, द बेसिस ऑन विच द प्राइस हैज बीन अराइव्ड, यानी कि ऑल डिटेल्स विद रिगार्ड टू प्रेफरेंसेस, इश्यू ऑफ प्रेफरेंसेस शुड बी मेंशन्ड इन द एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट। एंड वो सभी इक्विटी शेयरहोल्डर्स को भेजना है, सभी लोग पूरा होमवर्क करके आएंगे और बाद में इक्विटी शेयरहोल्डर्स की जनरल मीटिंग में स्पेशल रेजोल्यूशन अगर पास होता है तो प्रेफरेंस शेयर इश्यू करना है, देन एंड देन ओनली द कंपनी कैन इश्यू द प्रेफरेंसेस। या manner and modes of redemption, current shareholding pattern and expected dilution in equity shares capital in case of convertible preferences, ये सभी टर्म्स क्लैरिफाई करनी पड़ेगी। नंबर 4, where a company issues preferences, the register of members maintained under section 88 shall contain the particulars in respect of such preference shareholders. Yes, preference shareholders का एक रजिस्टर मेंटेन करना पड़ेगा, जिस तरह से इक्विटी शेयरहोल्डर्स का एक रजिस्टर मेंटेन होता है इस तरह से प्रेफरेंस शेयरहोल्डर्स का भी कंपनी को रजिस्टर मेंटेन करना पड़ेगा अगर कंपनी प्रेफरेंस शेयर इश्यू करती है तो। नंबर नेक्स्ट, अ कंपनी इंटेंडिंग टू लिस्ट इट्स प्रेफरेंसेस ऑन अ रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज शैल इश्यू सच शेयर्स इन अकॉर्डेंस विद सेबी गाइडलाइंस। अगर उसका लिस्टिंग करवाना है तो सेबी गाइडलाइंस आल्सो एप्लीकेबल। उसके नीचे एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ए फर्दर एज पर प्रोवाइजो टू सेक्शन a company may issue preference share for a period exceeding 20 years for infrastructure project subject to redemption of such percentage of shares
as may be prescribed on annual basis at the option of such preference holder. मतलब मैंने आपको पहले दो पार्ट में पढ़ाया, रिडीमेबल प्रेफरेंस और इररिडीमेबल प्रेफरेंसेस। इररिडीमेबल पे कैंसिल कर दो, इट इज कंप्लीटली प्रोहिबिटेड, नो कंपनी कैन इश्यू। रिडीमेबल में दो पार्ट, अगर आपको इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट के लिए ये फंड यूज करना है या तो अदर पर्पस के लिए यूज करना है, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट के लिए यूज करना है तो रिडेम्पशन पीरियड कैन बी मोर देन 20 years, मोर देन 20 years, यस। बट अदर देन इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट के लिए अगर आपको यूज करना है तो रिडेम्पशन पीरियड शुड बी मैक्सिमम 20 years, बिग क्लियर। या नॉर्मल केस में 20 years, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट में मोर देन 20 years इट इज अलाउड। अगर 25 साल के लिए आपको इश्यू करना है इट इज अलाउड, इट इज अलाउड। नॉर्मली 20 to 30 years, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट में मैक्सिमम पीरियड इज 30 years, या 30 years तक इश्यू कर सकते हो आप, एंड नॉर्मल केस में इट इज 20 years, बी क्लियर। या तो इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट के लिए अगर है तो मोर देन 20 years अलाउड। नॉर्मल प्रोजेक्ट में, अगर नॉर्मल प्रोजेक्ट के लिए अगर आपको प्रेफरेंस इश्यू करना है तो मैक्सिमम टेन्योर इज 20 years, यानी कि इट इज ऑलवेज रिडीमेबल। आफ्टर 20 years आपको रिडीम करना ही पड़ेगा। या तो दैट वाज ऑल अबाउट इश्यू। मैं तो ऐसा बोलता हूँ, इश्यू में आप काफी और पॉइंट लिख सकते हो, एप्लीकेशन मनी के बारे में लिख सकते हो, सभी पॉइंट जो मैंने इक्विटी में पढ़ाया था। या तो एप्लीकेशन के बारे में 2-3 पॉइंट वो लिखो, उसकी अकाउंटिंग एंट्री लिखो परफेक्ट। अलॉटमेंट के टाइम पे जो 3-4 इवेंट होती है वो परफेक्ट उसका ऑडिट करो। फर्स्ट कॉल एंड फाइनल कॉल का प्रॉपर ऑडिट करो, तो वो भी 5-6 पॉइंट आप अच्छी तरह से लिख सकते हो। या चलो आगे बढ़ो। रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंसेस, ये इश्यू था, नाउ इट इज रिडेम्पशन। जब कंपनी रिडीम कर रही है प्रेफरेंसेस तब एज एन ऑडिटर आपको क्या क्या चीज चेक करनी चाहिए, दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस। ऑडिटर शुड एंश्योर दैट फर्स्ट, redemption of preferences shall be made only out of profit of the company which would otherwise be available for dividend or out of proceed of the fresh issue। आपने FISY में कोई जगह पे चैप्टर पढ़ा होगा रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंसेस, डेफिनेटली अकाउंटिंग में पढ़ा होगा। अकाउंट में आपको टीचर पढ़ाते होंगे दो ही सोर्स में से रिडेम्पशन होता, या तो फ्री रिजर्व में से यू विल हैव टू ट्रांसफर टू CRR कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व, या तो आपको नया इश्यू करना, नया शेयर इश्यू करना पड़ेगा, एनी अदर टाइप ऑफ शेयर मींस इक्विटी इश्यू करना पड़ेगा। तो प्रेफरेंस शेयर का रिडेम्पशन दो पार्ट में है। समझ लो हम 100 करोड़ का प्रेफरेंस शेयर रिडीम करने के लिए जा रहे हैं तो उसका दो पार्ट कर दो। अगर आपके पास 60 करोड़ का प्रॉफिट पड़ा है, फ्री रिजर्व पड़ा है, तो यू कैन ट्रांसफर टू CRR। बैलेंस 40 करोड़ का भी अरेंजमेंट करना पड़ेगा क्योंकि टोटल 100 है, तो 60 का अरेंजमेंट हो गया, फ्री रिजर्व कैन बी ट्रांसफर टू CRR एंड बैलेंस 40 आपको अदर टाइप ऑफ शेयर्स इश्यू करना पड़ेगा, मतलब इक्विटी शेयर इश्यू करना पड़ेगा, फ्रेश शेयर इश्यू करना पड़ेगा। तो टोटल 100 करोड़ का अरेंजमेंट करना पड़ेगा, देयर आफ्टर यू कैन रिडीम द शेयर्स, बी क्लियर। दो ही रास्ता अलाउड है। नंबर 2, शेयर्स व्हिच आर टू बी रिडीम मस्ट बी फुल्ली पेड अप। मैंने आपको बायबैक में पढ़ाया था, बायबैक के साथ काफी लेवल पे वो कंपेरेबल है। रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंसेस, बायबैक इज नथिंग, इट इज रिडेम्पशन ऑफ इक्विटी शेयर्स, दिस इज रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंसेस। तो बायबैक में भी मैंने ये पढ़ाया था, CRR में ट्रांसफर करना है, नया शेयर इश्यू करना है, यहाँ भी ऐसा था, यहाँ भी फुल्ली पेड अप शेयर होना चाहिए तो ही रिडीम कर सकते हो। When such shares are proposed to be redeemed out of profit of the company, they shall out of such profit be transferred a sum equal to nominal amount of shares to be redeemed to reserve to be called for CRR। मैंने अभी पढ़ाया, फ्री रिजर्व में से कहाँ ट्रांसफर करना है, CRR में, कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व अकाउंट में। कितना अमाउंट ट्रांसफर करना है, जो प्रेफरेंस शेयर आप रिडीम कर रहे हो उसकी नॉमिनल वैल्यू, अगर वो 100 करोड़ है तो 100 करोड़ का दो पार्ट कर लो, 100 करोड़ का आपको अरेंजमेंट करना है, ऐसा पहले याद रख लो। कैसे, दो पार्ट। आपके पास अगर फ्री रिजर्व पड़ा मतलब प्रॉफिट पड़ा है तो P&L अकाउंट एंड जनरल रिजर्व में से यू कैन ट्रांसफर टू CRR। समझ लो वो 60 करोड़ था तो अभी 40 करोड़ का शॉर्टेज है, 40 करोड़ के लिए आपको नया इक्विटी शेयर इश्यू करना पड़ेगा। या नंबर 4, द प्रीमियम इफ एनी पेएबल ऑन रिडेम्पशन शैल बी प्रोवाइडेड फॉर आउट ऑफ द प्रॉफिट ऑफ द कंपनी और आउट ऑफ सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट। यस, हमने जो भी समझ लो प्रीमियम से रिडीम हो रहा है प्रेफरेंस है, 100 करोड़ बेसिक वैल्यू है, 20 करोड़ प्रीमियम है, 120 करोड़ पे कर रहे हैं, तो प्रीमियम का भी आपको प्रोविजन करना पड़ेगा। आपको भली बात ही पता है क्या, इश्यू के टाइम पे जो प्रीमियम आता है इट इज अ गेन, जो रिडेम्पशन के टाइम पे प्रीमियम आता है इट इज अ लॉस। तो ये रिडेम्पशन का प्रीमियम है, दिस इज अ लॉस, तो लॉस का आपको प्रोविजन करना पड़ेगा। या तो सिक्योरिटी प्रीमियम के सामने, सिक्योरिटी प्रीमियम कैन बी रिटन ऑफ अगेंस्ट सिक्योरिटी प्रीमियम, या तो सिक्योरिटी प्रीमियम हैज टू बी रिटन ऑफ अगेंस्ट प्रॉफिट। या where a company is not in a position to redeem any preferences or to pay dividend,
on it on such shares in accordance with the terms of the issue. It may, with the consent of the holders of 3/4 of the value of such preferences and with the approval of the tribunal, the made in this behalf, issue further redeemable preferences equal to the amount due, including the dividend thereon, in respect of unredeemed preferences, and on the issue of such further redeemable preferences, the unredeemed preferences shall be deemed to have been redeemed. My question is, एकदम सिंपल वे पे मैं आपको बताऊं तो समझ लो, कंपनी ने 15 साल के लिए प्रेफरेंस शेयर इशू किया, 15 साल खत्म हो गया, मगर कंपनी इज अनेबल टू रीपे, अनेबल टू रिडीम। 15 साल के बाद कंपनी के पास इतना कैश नहीं है कि कंपनी रिडीम कर पाए, तो प्रेफरेंस होल्डर की मीटिंग बुलवाओ, उसमें अगर 3/4 मींस 75% शेयरहोल्डर्स इन वैल्यू टर्म्स अगर वो अप्रूवल देते हैं कि कोई बात नहीं, कंपनी के पास फंड नहीं है, हमको नया प्रेफरेंस शेयर इशू कर दो, ट्रिब्यूनल की परमिशन ले लो, 3/4 शेयरहोल्डर्स प्रेफरेंस होल्डर्स की परमिशन ले लो, अगर दोनों अप्रूवल मिल गई तो आप नया प्रेफरेंस शेयर इशू कर सकते हो। समझ लो, हमारे पास एग्जिस्टिंग प्रेफरेंस होल्डर थे 100 करोड़ के प्रेफरेंस कैपिटल थी, 10 करोड़ का डिविडेंड बाकी था, तो 110 करोड़ ये प्रेफरेंस होल्डर्स का आउटस्टैंडिंग है, तो हम उसको नया प्रेफरेंस शेयर दे देंगे 110 करोड़ का। क्या आपको अभी कंपनी की पोजीशन नहीं है, 5 साल में कंपनी इतना एक्यूमुलेट कर लेगी और आपको रिपे कर देगी, तो 5 साल के लिए आपको नया प्रेफरेंस शेयर इशू किया जाएगा, ओल्ड प्रेफरेंस शेयर आपके पास से ले लेंगे और नया इश्यू कर सकती है कंपनी। क्या दो कंडीशन फुलफिल होती है तो 75% रिजोल्यूशन यानी कि 3/4 मेजोरिटी ऑफ द शेयरहोल्डर्स एंड ट्रिब्यूनल अप्रूवल, देन a company can resolve this problem। नया ओल्ड के अगेंस्ट में न्यू प्रेफरेंस शेयर इशू कर दो, 5 साल वाला या तो 7 साल वाला, एंड बाद में वो 5 साल के बाद जब कंपनी के पास वापस परफेक्ट पोजीशन हो जाएगी, कंपनी विल रिडीम इट। आई होप इट इज क्लियर टू यू। So that was all about preferences redemption। तो प्रेफरेंस शेयर रिडम्पशन एंड बायबैक में मेजोरिटी पॉइंट विल रिमेन सेम। मैं ऐसा बोल सकता हूँ क्या, जब आप रिडम्पशन कर रहे हो तो वो टाइम पे दो सोर्सेज अवेलेबल है, प्रॉफिट टू सीआरआर एंड न्यू इश्यू ऑफ इक्विटी। नंबर 2, फुल्ली पेड अप शेयर्स होना चाहिए, आपको सीआरआर में ट्रांसफर करना है प्रॉफिट इक्वल टू नॉमिनल वैल्यू। या आपको यही मैथमेटिकल फॉर्मूला याद रखने का, जब प्रेफरेंस से रिडीम करना है तो उसकी नॉमिनल वैल्यू ले लो, 100 करोड़ का रिडीम कर रहे हैं तो उसका 2 पार्ट कर देने का, उतना अरेंजमेंट करना है। आउट ऑफ 3 रिजर्व्स टू सीआरआर टू बी ट्रांसफर्ड एंड न्यू इश्यू ऑफ इक्विटी शेयर्स बी क्लियर। आई होप इट इज क्लियर टू यू। So that was all about preferences issue and redemption. Now we are moving ahead for the next topic. It is alteration of share capital। शेयर कैपिटल को अल्टर कर रहा है। आपके मेमोरेंडम में जो शेयर कैपिटल है, आपको भली बात ही पता होना चाहिए, मेमोरेंडम में टोटल 6 क्लोजेज होती है, आप 11-12 में पढ़ के आए हो। इसमें वन ऑफ द क्लोज इज शेयर कैपिटल। अगर वहां कुछ भी अल्टर करना है, चेंज करना है, तो इसकी क्या प्रोसीजर है एंड ऑडिटर को क्या क्या चीज चेक करनी चाहिए, दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस। देखो, इंस्टेंस ऑफ द अल्टरेशन as per section 61, a limited company having a share capital may, if so authorized by its article, alter its memorandum in its general meeting। yes, मैंने अभी बताया ना आपको, मेमोरेंडम में 6 क्लोज है, इसमें एक शेयर कैपिटल का क्लोज है, वहां शेयर कैपिटल अगर चेंज करनी है, अल्टर करनी है, तो मीनिंग देयर बाय इट इज एज गुड एज चेंज इन मेमोरेंडम। अब तो आपको इतनी प्रोसीजर फॉलो करनी पड़ेगी। क्या? नंबर 1, आर्टिकल्स में परमिशन होनी चाहिए। नंबर 2, यहाँ देखो, ए, increase its authorized share capital by such amount as it thinks expedient। कंपनी उसकी ऑथोराइज्ड कैपिटल बढ़ा सकती है। मेमोरेंडम में जो कैपिटल लिखी है शेयर कैपिटल क्लॉज में, इट इज कॉल्ड ऑथोराइज्ड कैपिटल। ऑथोराइज्ड कैपिटल मींस द मैक्सिमम कैपिटल कंपनी कैन इश्यू। आज समझ लो हमारे पास वहां 10 करोड़ लिखा था, हमने 10 करोड़ इश्यू कर दिया। अब समझ लो कंपनी को फर्दर फंड की जरूरत पड़ी 15 करोड़ की, तो और 5 करोड़ की जरूरत पड़ी, तो मेमोरेंडम में तो जो अमाउंट है वो हमने पूरा इश्यू कर दिया, तो कंपनी क्या करेगी, क्या कर सकती है? कंपनी को मेमोरेंडम चेंज करना पड़ेगा, शेयर कैपिटल क्लॉज चेंज करना पड़ेगा, वहां 15 करोड़ करना पड़ेगा, उस पर स्टैंप ड्यूटी भरनी पड़ेगी, और बाद में ही कंपनी कैन इश्यू एडिशनल 5 करोड़ कैपिटल। बिग क्लियर। तो कंपनी ऑथोराइज कैपिटल बढ़ा सकती है। नंबर 2, कंसोलिडेट एंड डिवाइड all or any of the shares into shares of a larger
अमाउंट देन इट्स एग्जिस्टिंग शेयर। यस, आप कंसोलिडेट भी कर सकती हो, स्प्लिट भी कर सकती है। मतलब समझ लो कंपनी का 10 रुपीज का एक शेयर है और 1 लाख शेयर है, ऐसा मेमोरेंडम में लिखा 1 लाख शेयर्स ऑफ ₹10 ईच इज इक्वल टू 10 लाख कैपिटल। गुड। तो 10 रुपीज वाला शेयर है, उसको कंपनी को कंसोलिडेट करना है। समझ लो 100 रुपीज का कर देना है शेयर, तो 10 शेयर को मर्ज कर दो, तो कितने शेयर हो जाएगा? 1 लाख का कितना हो जाएगा? 10,000 शेयर एट द रेट 100 ईच इज इक्वल टू 10 लाख। कैपिटल विल रिमेन सेम। तो शेयर्स की फेस वैल्यू है वो आप कंसोलिडेट कर रहे हो, 10 रुपीज वाला शेयर को 100 में कन्वर्ट कर दिया। क्लियर? तो नंबर ऑफ शेयर विल गो डाउन। पहले क्या था? 1 लाख शेयर एट 10 ईच इज इक्वल टू 10 लाख। अब क्या हो गया? 10,000 शेयर्स ऑफ ₹100 ईच इज इक्वल टू 10 लाख। क्या? जो 10 रुपीज फेस वैल्यू थी उसको 100 में कन्वर्ट कर दिया, मीन्स 10 शेयर का 1 शेयर कर दिया, तो 1 लाख शेयर का 10,000 शेयर हो जाएगा। आई होप इट इज क्लियर। एंड सेम वे पे कंपनी कैन स्प्लिट इट। या convert all or any of its fully paid up shares into stock or reconvert the stock into fully paid up shares of any denomination। या स्टॉक है, हेलो, स्टॉक एंड शेयर में क्या डिफरेंस होता है? जो स्टॉक है वो फ्रैक्शन में भी हो सकता है, फ्रैक्शन में भी हो सकता है, एंड शेयर है वो ऑलवेज राउंड फिगर में होता है, ₹1, ₹10। एक शेयर की वैल्यू फेस वैल्यू या तो ₹1 है, या तो ₹10 है, या तो ₹100 है। एंड स्टॉक में वो फ्रैक्शन में भी हो सकता है। तो कंपनी कुछ पोर्शन है कैपिटल को स्टॉक में कन्वर्ट कर सकती है, स्टॉक को कैपिटल में कन्वर्ट कर सकती है। या सब डिवाइड इट्स शेयर्स और एनी ऑफ देम इनटू शेयर्स ऑफ स्मॉलर अमाउंट देन इट इज फिक्स, इट इज स्प्लिट। जिस तरह से ऊपर कंसोलिडेट किया था हमने, टेक एन एग्जांपल, हमने ऊपर क्या किया था? 1 लाख का शेयर 10 रुपीज का है, टोटल 10 लाख, और हमने क्या उसको कंसोलिडेट में किया था? 10,000 शेयर्स ऑफ ₹100 ईच इज इक्वल टू 10 लाख। यहाँ आप स्प्लिट कर सकते हो, समझ लो ऐसा है पोजीशन, 1 लाख शेयर्स ऑफ ₹10 ईच इज इक्वल टू 10 लाख। ये 10 रुपीज वाला है, उसको 1 रुपीज की फेस वैल्यू कर देनी, तो एक शेयर का 10 शेयर में करना है, डिवाइड करना है। वहां कंसोलिडेट किया था, यहाँ डिवाइड कर दो, तो 1 रुपीज का शेयर कर दिया, तो 1 शेयर का 10 शेयर हो गया, तो 1 लाख शेयर था, 10 लाख शेयर हो जाएगा, तो 10 लाख शेयर at 1 rupees each is equal to 10 lakh. So total capital will remain same. Be clear. And cancel shares which at the date of passing of resolution in this behalf have not been taken or agreed to be taken by any person or diminish the amounts of its share capital by the amount of shares so cancel. And या तो share capital आपको cancel करनी है, meaning that इतना change करना, क्या authorize बढ़ाना, consolidate करना, convert करना into stock, या तो स्प्लिट करना, या तो कैंसिल करना, दिस इज कॉल्ड अल्टरेशन ऑफ शेयर कैपिटल। उसमें ऑडिट क्या करने का? देखो इसमें नॉर्मली 2 परमिशन चाहिए, समझ लो आर्टिकल्स में ऑथराइजेशन चाहिए, शेयर होल्डर्स की परमिशन चाहिए, देख लो, इन आरओसी में अपडेट कर दो, खत्म। देखो, टू वेरीफाई दैट अल्टरेशन ऑफ कैपिटल इज ऑथराइज्ड बाय आर्टिकल्स, आया आर्टिकल्स की परमिशन चाहिए, आर्टिकल्स में लिखा होना चाहिए कंपनी कैन अल्टर, तो ही अल्टर कर सकते हो। नंबर 2, टू इंस्पेक्ट द मिनट्स ऑफ द शेयरहोल्डर्स ऑथराइजिंग अल्टरेशन। देखो शेयरहोल्डर्स की अप्रूवल चेक करो, शेयरहोल्डर्स की अप्रूवल कहाँ लिखी होती है? मिनट बुक में, मिनट बुक चेक करो। टू ऑब्टेन अलॉटमेंट लिस्ट कंटेनिंग डिटेल्स ऑफ न्यू होल्डिंग्स ऑफ शेयर्स और स्टॉक बाय ईच मेंबर एंड वेरीफाई द सेम। यस, बाद में कंपनी ने जो भी डिसीजन लिया उसका जो एग्जीक्यूशन किया उसका प्रॉपर ऑडिट किया जाए। टू इंस्पेक्ट द डायरेक्टर्स रिजोल्यूशन, डायरेक्टर का रिजोल्यूशन चेक कर लो, बोर्ड अप्रूवल चेक कर लो। तो बोर्ड नॉर्मली 3 अप्रूवल होती है, आर्टिकल्स में अप्रूवल चाहिए, शेयरहोल्डर्स की अप्रूवल चाहिए, एंड बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की अप्रूवल चाहिए, एंड बाद में आरओसी का कंप्लायंस चेक कर लो। हाँ, टू एग्जामिन द कैंसल शेयर सर्टिफिकेट, अगर शेयर कैंसिल कर रहे हैं तो हमको ये भी चेक कर लेना चाहिए कि जो शेयर सर्टिफिकेट आया वो कैंसिल कर दिया, उसको डिस्ट्रॉय कर दिया। टू सी दैट द प्रोसीजर प्रिस्क्राइब बाय द आर्टिकल्स इन दिस रिगार्ड हैज बीन कंप्लाइड विद, आर्टिकल में जो भी प्रोसीजर लिखी थी वो पूरी प्रोसीजर कंप्लाई किया है। टू वेरीफाई दैट द शेयर कैपिटल अकाउंट इज करेक्टली शोन इन द बैलेंस शीट। यस, जो शेयर कैपिटल इंक्रीज हुआ, डिक्रीज हुआ, कैंसिल हुआ, जो भी आपने इफेक्ट दिया अकॉर्डिंगली बैलेंस शीट में चेंज कर लिया, मेमोरेंडम में चेंज कर लिया, चेक कर लेने का। टू सी दैट नेसेसरी इंटीमेशन टू आरओसी, मैंने अभी आपको बताया ना, आपको आरओसी को कंप्लीट इंटीमेशन देना पड़ेगा, आरओसी का प्रॉपर कंप्लायंस करना पड़ेगा, एंड आपका मेमोरेंडम की कॉपी में चेंज करना पड़ेगा।
change the memorandum accordingly. Yeah, be clear, be clear. Yeah, तो this is all about the audit of the alteration. अल्ट्रेशन में प्रैक्टिकली आपको ये ऑडिट में 5 चीज याद रखनी चाहिए. क्या? आर्टिकल्स की अप्रूवल, नंबर 2 बोर्ड अप्रूवल, नंबर 3 शेयरहोल्डर्स अप्रूवल, नंबर 4 आरओसी कंप्लायंस, एंड नंबर 5 मेमोरेंडम में परफेक्ट चेंज कर लिया एंड बैलेंस शीट में प्रॉपर चेंज कर लिया, चेक करो. दैट्स इट. ये चीज आपको चेक कर लेनी चाहिए. एक और क्वेश्चन देख लेते हैं हम आज. इट इज बोनस शेयर्स, ऑडिट ऑफ बोनस शेयर्स. एक चीज मुझे आपको क्लैरिफाई करने दो. क्या? बोनस शेयर जब भी कंपनी इश्यू करती है वो एग्जिस्टिंग इक्विटी शेयरहोल्डर्स को इश्यू करती है. दैट इज फर्स्ट स्टेटमेंट. जो मेरे एग्जिस्टिंग इक्विटी शेयरहोल्डर्स है उसको हम बोनस देते हैं. बोनस मींस गिफ्ट, फ्री ऑफ कॉस्ट. कुछ भी उसके पास से कंसीडरेशन नहीं आता. समझ लो आप सब मेरे इक्विटी शेयरहोल्डर्स हो, आप सभी के पास एक एक शेयर है. कंपनी ने डिसीजन लिया एक पे एक बोनस देना, तो आपके पास अगर एक शेयर है तो आपको एक बोनस मिलेगा, तो अब आपके पास 2 शेयर हो जाएगा. बी क्लियर. बोनस शेयर में कंपनी में कोई भी फंड नहीं आता, शेयरहोल्डर्स को कुछ भी पे नहीं करना, आपको फ्री में मिल रहा है बोनस शेयर्स. तो कंपनी के पास कोई भी कैश नहीं आ रही. नॉर्मली कैश आती है तो हम एंट्री ये पास करते हैं. क्या? बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल. यहाँ कैश नहीं आ रही है तो एंट्री क्या पास होगी? बैंक तो नहीं आ रही, तो रिजर्व में से इश्यू होता है बोनस शेयर. तो फ्री रिजर्व अकाउंट डेबिट टू इक्विटी कैपिटल. वहां क्या था? बैंक टू कैपिटल, यहाँ फ्री रिजर्व्स टू कैपिटल. तो प्रैक्टिकली इट इज नथिंग, इट इज कैपिटलाइजेशन ऑफ रिजर्व्स. रिजर्व्स को कैपिटलाइजेशन कर रहा है कंपनी. या दैट इज ऑल अबाउट बोनस. मगर बोनस के लिए जो कंडीशन है दैट शुड बी complied with. तो यहाँ लिखा while verifying the issue of bonus shares, the auditor is required to consider the following. Examine the source of bonus. As per the company act, company may issue fully paid up bonus share to the member out of its free reserve. Underline the word. फ्री रिजर्व में से इश्यू कर सकती है. सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट, यस. कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व अकाउंट, यस. प्रोवाइडेड दैट नो इश्यू ऑफ बोनस शेयर्स शैल बी मेड बाय कैपिटलाइजिंग रिजर्व क्रिएटेड बाय रिवैल्यूएशन ऑफ असेट्स. यस. कौन कौन से रिजर्व में से कंपनी बोनस इश्यू कर सकती है? माइंड में लिख लो. फ्री रिजर्व, सिक्योरिटी प्रीमियम एंड सीआरआर, कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व. ये 3 रिजर्व में से कंपनी कैन इश्यू द बोनस शेयर्स. फ्री रिजर्व मींस जनरल रिजर्व एंड पीएनएल. सिक्योरिटी प्रीमियम मींस सिक्योरिटीज प्रीमियम एंड सीआरआर मींस सीआरआर. बस उसमें से ही कंपनी बोनस शेयर इश्यू कर सकती है. सेकंड पॉइंट याद रखो, कंपनी रिवैल्यूएशन रिजर्व में से, रिवैल्यूएशन रिजर्व अगर आपके पास है, असेट सामने रिवैल्यूट किया था और यहाँ रिजर्व क्रिएट किया था, इट इज एन अनरियलाइज्ड प्रॉफिट. आउट ऑफ अनरियलाइज्ड प्रॉफिट कंपनी कैन नॉट इश्यू द बोनस शेयर्स. या तो रिवैल्यूएशन रिजर्व में से कंपनी कैन नॉट इश्यू द बोनस शेयर्स. ये सेकंड पॉइंट याद रखो. आगे बढ़ो. ऑडिटर शुड आल्सो इंश्योर the compliance of condition for capitalization of the profit or reserve for issuing the fully paid bonus share. Like ये देखो, ये सभी कंडीशन फुलफिल हुआ है ना कंपनी एक्ट की. क्या? बोनस इश्यू इज ऑथराइज्ड बाय आर्टिकल्स. आर्टिकल्स में परमिशन होनी चाहिए. नंबर 2, बोनस इश्यू हैज ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द बोर्ड बीन ऑथराइज्ड इन द जनरल मीटिंग ऑफ द कंपनी. यानी कि बोर्ड की अप्रूवल चाहिए, शेयरहोल्डर्स की अप्रूवल चाहिए, तो ही बोनस इश्यू हो सकता है. नंबर 3, द कंपनी हैज नॉट डिफॉल्टेड इन पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट और प्रिंसिपल इन रिस्पेक्ट ऑफ फिक्स्ड डिपॉजिट और डेब्ट सिक्योरिटीज इश्यूड बाय इट. या अगर आप बोनस दे रहे हो तो कंपनी का कोई डिफॉल्ट नहीं होना चाहिए. किसमें? डिपॉजिट, या तो उसका इंटरेस्ट पे करने में, या तो डिबेंचर उसका इंटरेस्ट पे करने में. कंपनी ने कोई डिफॉल्ट नहीं किया तो ही शेयरहोल्डर को आप बोनस दे सकते हो. अगर आपने डिफॉल्ट किया है तो यू कैन नॉट इश्यू द बोनस. पहले वो डिफॉल्ट परफेक्ट करो, बाद में किसी को गिफ्ट दो. पहले आपका जो बाकी है वो पे करो, बाद में किसी को गिफ्ट दो. क्लियर? बी क्लियर. Company has not defaulted in respect of payment of statutory dues of the employees, such as contribution to provident fund, gratuity, bonus, etc. जो ये भी ऐसा ही है. कंपनी ने कोई एम्प्लॉय रिलेवेंट ड्यूज में डिफॉल्ट नहीं किया होना चाहिए. समझ लो, वेजेस बाकी है, प्रोविडेंट फंड का कंट्रीब्यूशन बाकी है, ग्रेचुइटी बाकी है, बोनस बाकी है एम्प्लॉय का, तो पहले उसको पे करो ना. बोनस देने की क्या जरूरत है? क्या? तो एम्प्लॉय रिलेवेंट कोई भी डिफॉल्ट नहीं होना चाहिए. देन एंड देन ओनली कंपनी कैन इश्यू द बोनस. Partly paid up shares, if any outstanding on the date of allotment, are made fully paid up. Yes. Partly paid up अगर कोई भी शेयर है तो उसको पहले कॉल मंगवा लो, fully paid up कर दो, and then you can issue the bonus. Bonus shares shall not be issued in lieu of dividend, meaning that समझ लो डिविडेंड बाकी था, कंपनी ने डिविडेंड डिक्लेयर किया था, कंपनी को डिविडेंड पेमेंट बाकी है, तो कंपनी ऐसा नहीं कर सकती चलो वो डिविडेंड कैंसिल कर दो, उसके सामने बोनस. डिविडेंड के लिeu में बोनस इश्यू नहीं हो सकता. डिविडेंड अगर आपने डिक्लेयर किया तो आपको पे करना ही पड़ेगा.
कैश में पेमेंट करना ही पड़ेगा शेयरहोल्डर्स को। मैं इतना बोलूं, डिविडेंड इज नथिंग, इट इज अ कैश पेमेंट टू द शेयरहोल्डर्स, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कैश प्रॉफिट टू द शेयरहोल्डर्स, एंड बोनस इज वो कंपनी शेयर डिस्ट्रीब्यूट कर रही है, कैश डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर रही है, शेयर डिस्ट्रीब्यूट कर रही है। या बी क्लियर। तो कंपनी कैन नॉट इश्यू द बोनस शेयर्स इन लिeu ऑफ डिविडेंड एंड कंपनी कंप्लाइज विद ऑल कंडीशंस एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड। क्या तो बोनस इश्यू के लिए इतनी कंडीशन है, क्या आर्टिकल्स में ऑथोराइज, बोर्ड अप्रूवल, शेयरहोल्डर्स अप्रूवल, आपने डेब्ट डिबेंचर और उसके इंटरेस्ट में कोई डिफॉल्ट नहीं किया, डिपॉजिट और उसके इंटरेस्ट में कोई डिफॉल्ट नहीं किया, एम्प्लॉय रिलेवेंट कोई डिफॉल्ट नहीं किया, जो पार्टली पेड अप है उसको फुल्ली पेड अप पहले कर दिया, बाद में बोनस इशू किया, बोनस कैन नॉट बी इशूड इन लिeu ऑफ डिविडेंड। या ये सभी कंडीशन आपको कंप्लाई करना है, बी क्लियर, इन रिस्पेक्ट ऑफ द बोनस शेयर्स। एंड अगर कंपनी which once announced the decision of the board recommending the bonus issue shall not subsequently withdraw the same। yes, एक बार कंपनी ने बोनस इश्यू की अप्रूवल दे दिया शेयरहोल्डर्स ने, बाद में वो रिवर्स नहीं हो सकता, बाद में रिवर्स नहीं हो सकता, बाद में बोनस इश्यू करना ही पड़ेगा। बिग क्लियर, बिग क्लियर। या तो दैट वाज ऑल अबाउट द बोनस शेयर। ये सीआरआर अभी तक मैंने दो जगह पे आपको पढ़ाया। कौन से दो लेवल पे आपको सीआरआर क्रिएट करना है मैंने आपको पढ़ा दिया ऑलरेडी। सीआरआर का बर्थ कब होता है? जब आप इक्विटी बायबैक कर रहे हो तो सीआरआर का बर्थ होता है। मैंने आपको पढ़ाया था, जितना इक्विटी बायबैक करो ना उसकी नॉमिनल वैल्यू समझ लो 100 करोड़, उसका दो जगह से आपको प्रोविजन करना है। क्या? फ्री रिजर्व प्लस सिक्योरिटी प्रीमियम, उसमें से आप सीआरआर में ट्रांसफर कर सकते हो। समझ लो वो 60 करोड़ था तो 60 करोड़ हमने वो ट्रांसफर किया, बैलेंस 40 करोड़ बचा, वो हम एनी अदर टाइप ऑफ शेयर्स इश्यू कर सकते हैं, करना पड़ेगा। ये टोटल 100 करोड़ का आपको अरेंजमेंट करना पड़ेगा। तो आपका यहाँ सीआरआर क्रिएट हुआ, देखो फ्री रिजर्व एंड सिक्योरिटी प्रीमियम में से यू हैव ट्रांसफर टू सीआरआर, तो सीआरआर का बर्थ हुआ। एंड सेकंड मैंने कहाँ पढ़ाया? रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स में, वहां भी आपको मैंने पढ़ाया क्या, दो रास्ता है, आउट ऑफ फ्री रिजर्व यू कैन ट्रांसफर टू सीआरआर एंड या तो एनी अदर टाइप ऑफ शेयर्स यू विल हैव टू इश्यू। दो जगह से सीआरआर का बर्थ होता है। एंड सीआरआर यूज कहाँ होता है? ओनली फॉर द पर्पज ऑफ इश्यू ऑफ फुल्ली पेड बोनस शेयर। सीआरआर का बर्थ हो गया, सीआरआर में ट्रांसफर कर दिया तो सीआरआर क्रिएट हो गया, कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व क्रिएट हो गया। बाद में ये रिजर्व कहाँ यूज होगा? ओनली फॉर द पर्पज ऑफ फुल्ली इश्यू ऑफ फुल्ली पेड बोनस शेयर। इसमें से बोनस शेयर इश्यू हो सकता है इक्विटी होल्डर्स को, और कोई पर्पस के लिए सीआरआर यूज नहीं हो सकता। तो दैट इज द रिक्वायरमेंट एंड यूटिलाइजेशन ऑफ द सीआरआर। बी क्लियर, बी क्लियर। अलॉटमेंट वी हैव ऑलरेडी डिस्कस। क्या लिखा? या अलॉटमेंट इज ऑलरेडी डिस्कस। डिबेंचर की बात करें, ओके, ऑडिट ऑफ डिबेंचर्स, सॉरी डिबेंचर्स अभी पेंडिंग है, डिबेंचर्स का हम ऑडिट देखेंगे कल के सेशन में। आई थिंक वी विल कंप्लीट द डिबेंचर्स एज वेल। डिबेंचर का इश्यू भी देख लेंगे, डिबेंचर का रिडेम्पशन भी देख लेंगे, और भी इसमें कोई अगर मिसलेनियस टॉपिक है तो दैट विल डिस्कस एंड विल कंप्लीट द ऑडिट ऑफ शेयर कैपिटल चैप्टर। या तो यूनिट 2 में बाद में हमारे पास एक टॉपिक बचेगा, इट इज द डिविडेंड, ऑडिट ऑफ डिविडेंड। या तो बाद में हम अकॉर्डिंगली विल कंप्लीट द यूनिट 2। या नाउ यू टेल मी ऑडियंस इफ यू हैव एनी क्वेश्चन आज के सेशन में, या तो जो मैंने सेशंस आपको रिवीजन करने के लिए दिया था उसमें आपको अगर कोई भी डाउट है तो प्लीज रेज योर डाउट प्लीज।